Am I audible to you, everybody? Yes, sir. Okay, friends, so once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are going to complete the numerical of this chapter in today's lecture. We are discussing chapter number 12. First and second numerical you can do yourself. It is not in there in your content. We'll start from the illustration number 3. So are you able to see the question number 3 in your mobile screen? Yes. Okay. So what is the question? Question is, uh, it is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate the hydrogen atom into a proton and electron. Compute the orbital radius and the velocity of electron of hydrogen atom. So it is mentioned in the question that the total energy, required energy to eliminate the electron, to make the electron free from the atom, is a 13.6. It is mentioned in the question, right? So that means that the energy of the total energy of electron is given as a minus 30. Required energy is plus 13.6. So total energy is a minus 13.6. It is mentioned in the question, right? But you know the formula of this energy. If you remember, the formula of the energy of electron can be given by 1 upon 8 pi epsilon naught E square by R इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं. चलो, so that is a 1 upon 8 pi epsilon naught means it is a k by 2. It is a 1 upon 4 pi epsilon naught into 1 by 2. नेगेटिव गेट कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स. नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से. तो यहाँ पे हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई 2r. 1 upon 4 pi epsilon naught by 2. 1 upon 8 pi epsilon, that is a k by 2 is equals to 13.6 1.6 10 रेज टू माइनस 19. चलो k का वैल्यू जो है ना वो 9 इंटू 10 रेज टू 9 है. E that is a 1.6 into 10 raised to minus 19 का स्क्वायर. Our ultimately target is to find the orbital radius. तो पहले तो रेडियस फाइंड करना है और दूसरा मुझे फाइंड करना है उसका वेलोसिटी फॉर द सेम रेडियस. ये दो चीज मुझे यहाँ पे फाइंड करना है. फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर. चलो देखो, इसके ये चैप्टर, in this chapter if you try to solve the numerical yourself, and if you think by looking the question, by reading the question, just think about the equation and try to analyze the situation and try to solve this question yourself. So these are very simple question. आप देखो कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसी हिसाब से आपका सोच है कि नहीं. तो आर को सब जगह इक्वेशन बनाते हैं तो बचेगा 9 इंटू 10 रेज टू 9 बचेगा. यहाँ पे 1.6 10 रेज टू माइनस 19 का एक पावर बचेगा और डिनोमिनेटर में आपका बचेगा 2 तो है ही, एंड बचेगा 13.6. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका आंसर 0.53 10 रेज टू माइनस 10 के आसपास आना चाहिए. जो आपको पता है कि बोर रेडियस बोलते हैं उसको. हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको बोर रेडियस बोलते हैं. उसका वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम जितना होना चाहिए. तो अगर ऐसा आंसर आ जाता है तो दैट्स ओके, तो ये बराबर है. अब देखो यहाँ पे मुझे रेडियस तो मिल गया, अब मुझे वेलोसिटी भी फाइंड करना है. तो कोई बताएगा, है कोई माइका लाल, किसी की कोई सोच के बताएगा? डोंट लुक एट द सोल्यूशन, सोच के बताओ कि अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो कैसे मिलेगा. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. चलो ऐसा मैंने बताया, अब कुछ हिंट मैंने दे दिया. mvr equals to nh by 2.
NH by 2 pi. ओके, दैट्स ऑल्सो ओके, बट देखो अभी जो है ना वो बोहर एटॉमिक मॉडल एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो ये बोहर एटम वो जो आप बोले वो भी सही है, उससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ये अप्लाई करेंगे बिकॉज ये जो न्यूमेरिकल जिस जगह पे चैप्टर में है वहां पे बोहर मॉडल अभी तक नहीं आया है, तो आई कैन से द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स, and electrical force is a k q1 q2 upon r square, so k e square by r square. Is that clear? Yes, sir. अब एक r कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो यू कैन डू दिस k स्क्वायर बाई mr. अब k का वैल्यू आपको पता है कि 9 इंटू 10⁻⁹ है, e 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर दो भैया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा 9.1 इंटू 10⁻31, रेडियस जस्ट वी हैड फाउंड 0.53 एंगस्ट्रॉम. So putting all this value, you get the v square, and just take the square root of that, you will get the velocity. Is that clear, friends? Yes, sir. Otherwise, in the examinations, you can also use this method as well. ये method भी use कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर आपको रेडियस कितना, देखो ये यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि n का वैल्यू क्या लोगे आप. वैसे आपको पता है कि भाई ये फर्स्ट ऑर्बिट का है, बट क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए डोंट यूज दिस मेथड बिकॉज ये नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है वो क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है, तो दैट इज व्हाई डोंट यूज दिस मेथड. बट इफ यू फाइंड द आंसर बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, नो डाउट एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, बट अगर आप ये करते हो आपके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर आप आर का वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे ये इक्वेशन अप्लाई करने के द्वारा, तो भी आपको मतलब वेलोसिटी का सेम ही फॉर्मूला मिलेगा, सेम ही आंसर मिलेगा. आर का वैल्यू 0.53 है और वी को सब जगह इक्वेशन बना के फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा. ओके, Yes, sir. ओके, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. According to the classical electromagnetic theory, are you able to see the question number 4? Just look at the question. According. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा है कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे अप्लाइड है, अप्लाई हो सकता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बताता है कि अगर अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व होता है, तो उसका जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो जो फ्रीक्वेंसी के द्वारा मान लो कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन का फ्रीक्वेंसी सपोज के 50 हर्ट्ज है, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही होना चाहिए. जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन का है वही फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगा, वो ऐसा क्लासिकल मैकेनिक्स बता रहा है. वैसे आपको पता है कि ये स्टेबल ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कोई किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस नहीं करता है, वो हमको पता है. अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन इज नो मोर द पार्टिकल इन द पार्टिकल फॉर्म. Around the nucleus, electron is in the wave form, so it is not going to emit any energy. But suppose classical mechanics सही है, यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं, तो फिर कौन से फ्रीक्वेंसी का एमिशन होना चाहिए. तो हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर देंगे और फिर लास्ट में आर्ग्यूमेंट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स दिस frequency of electron is not the frequency of electron, it is also the frequency of electromagnetic radiation. तो मुझे करना क्या है भैया, मुझे अभी इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. तो अगर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 पूछते हैं तो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको पूरा कंप्लीट करना है. पहले तो 3 को सॉल्व कर दो, पूरा 3 को सॉल्व कर दो, सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 3. उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला V इक्वल्स टू आर ओमेगा. अब आर के बदले आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ.
तो मेक द एफ सब जगह इक्वेशन, तो v अपॉन 2 पाई r हो जाएगा भैया। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. तो v आपने फाइंड कर दिया था इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, r भी आपने फाइंड कर दिया था इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ v एंड r, यू गेट द आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी। And this frequency is not just a frequency of the revolution of electron, it is also the frequency of the electromagnetic radiation emitted from the electron. Is that clear? Yes, sir. Okay. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखो क्या लिखा है, क्या बताया गया है कि 10 kg सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ वंस एवरी 2 आवर। चलो, तो एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो हमको दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है, कोई बताएगा मुझे, हमको क्या प्रोवाइड किया हुआ है? हमको पीरियोडिक टाइम दिया गया है, कितना है? 2 आवर। रेडियस हमको दिया हुआ है 8000 किलोमीटर। Assuming that the Bohr's angular momentum postulates applied, मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2 पाई हमको अप्लाई करना है। यहाँ पे वैसे सैटेलाइट का मोशन है, बट मानना है कि वो अप्लाई हो सकता है। तो फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो उसका n, क्वांटम नंबर मतलब n फाइंड करना है, आपको n फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई बताएगा मुझे इसको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? mv² v स्क्वायर नहीं अपॉन r नहीं इक्वल्स नहीं टू नहीं, mv² अपॉन r क्यों बोलते हो भैया? हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो करना है, क्वेश्चन में क्या करना है वो भी बोला ही है ना। एज पर द बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट्स। कैन आई से L इज इक्वल्स टू NH/2 पाई? चलेगा? L, that is a mvr is equals to NH/2 पाई। Is that okay friends? चलो यहां तक बराबर है। Yes, sir. Now the problem is we don't have the value of v, मुझे v पता नहीं है। तो नो वरी, आपको v के बदले आप क्या लिख सकते हो? यस और नो फ्रेंड्स, इज दैट ओके? Yes. अब देखो ओमेगा भी नहीं है, तो क्या करेंगे अब हम? 2 pi f. 2 पाई f, बट फ्रीक्वेंसी नहीं है। 2 pi by t. हाँ अब बराबर है कि भाई ओमेगा के, देखो r इंटू आर तो हो जाएगा r², एंड ओमेगा तो आपका हो जाएगा 2 पाई बाई पीरियोडिक टाइम इज इक्वल्स टू NH/2 पाई। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज। देखो मास आपको सैटेलाइट का दिया हुआ 10 kg, मास दिया है 10 kg। रेडियस ऑफ द रिवॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको 8000 किलोमीटर। किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 मतलब 2 पाई मतलब पाई। पीरियोडिक टाइम आपको दिया हुआ है 2 आवर। 2 आवर का मतलब हो जाएगा आपका 2 इंटू 3600 सेकेंड्स। ओके, और आपको h पता है, 2 पाई पता है, तो विल यू एबल टू फाइंड द क्वांटम नंबर? इज दैट ओके? करोगे ये सब? Yes. कैलकुलेशन कर सकते हो? Yes, sir. इज दैट ओके? Yes, sir. ओके फाइन। देखो ये इलस्ट्रेशन हमने 5 किया, एंड द नाउ द लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज द लास्ट इलस्ट्रेशन। तो ये 6th इलस्ट्रेशन हम करेंगे 1 मिनट में करेंगे, बट उसके पहले एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10,
वो एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार। तो क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है? क्या लिखा है देखो। इन अकॉर्डेंस विद द बोहर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट characterizes the earth's revolution around the sun having a radius something something, speed something something and mass something something। तो मुझे क्या फाइंड करना है वहां, यहाँ पे वापस से क्या फाइंड करना है देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड करने का पूछा गया है। क्वांटम नंबर एच एन। हाँ, वंस अगेन वन क्वांटम नंबर। और वहां यहाँ पे भी बोहर का कुछ बोला है, बोहर का यूज करना है ऐसा पूछा है, बोला है। यस। यस सर। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट। once again I can write L is equals to NH upon 2 pi। तो MVR is equals to NH upon 2 pi। ओके, तो मास है, स्पीड है, रेडियस है, एच भी है। इट इज अ क्वाइट सिंपलर। करने की जरूरत है फ्रेंड्स? नो सर। इज इट ओके? यस। चलो, कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 6। सिक्स्थ इलस्ट्रेशन पे वापस से आ जाते हैं। सेवेंथ इलस्ट्रेशन तो है ही नहीं, फिर भी लिखा हुआ है उन लोगों ने। सेवेंथ भी है, सेवेंथ तो है ही नहीं, इस नंबर 7 है ही नहीं, 6 तक ही है। चलो, क्या है भैया बात 6 में? 6 में कुछ बात है क्या? कुछ using Rydberg formula calculate the wavelengths of the first 4 spectral line of the Lyman series। सो फ्रेंड्स, लाइमन सीरीज के पहले 4 स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ फाइंड करना है। उसमें क्या है भैया? कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया? लाइमन का फॉर्मूला लिखेंगे। चलो, कोई बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइमन सीरीज? 1 upon lambda equals to r into 1 upon 1 square minus 1 upon n square। वेरी गुड। एंड स्टार्ट फ्रॉम 2। ओके, सो लेट्स मेक इट मोर सिंपलर। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? यस सर। चलो, वी गॉट सम फॉर्मूला फॉर द लैम्डा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन अगर आपको फाइंड करना है, मतलब लाइमन सीरीज का फर्स्ट वेवलेंथ फाइंड करना है, तो आपको एन का कौन सा वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा? 2। एग्जैक्टली, बिकॉज एन स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर। तो कैन आई से इट इज अ 4r/3। यस और नो? यस सर। गलत जवाब, गलत जवाब। क्यों? 1 upon r। हाँ। मिस्टेक मैंने कर दिया था। तो आप जाग रहे हो ना, सो रहे हो? ओके, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ द आर। आर का वैल्यू आपको पता है? 1.097 हाँ, into 10 to 10। 1.097 10�7 मीटर इनवर्स। तो जस्ट पुट द वैल्यू। तो क्या ऐसे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन का वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप? एन का वैल्यू यस। 4 प्लेस करो, 5 प्लेस करो, करने की जरूरत है अभी? नहीं सर। चलेगा? यस सर। ओके, इज इट ओके? तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा 4 मार्क्स में पूछने के लिए, बिकॉज 4 वेवलेंथ है तो 4 मार्क्स हो जाएगा ना।
तो ये ऑफिशियल 4 मार्क क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, यस सर। चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 वापस से कैंसिल किया है, बट उसमें कुछ है ही नहीं। मैंने जो थ्योरी आपको पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, पूरा चैप्टर मैंने आपको, पूरा चैप्टर वैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैंसिल किया था आपके सिलेबस में से, बट मैंने आपको पूरा मॉडल एक्सप्लेन किया था, तो इसके बेस पे ही है दोनों क्वेश्चन। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, बट मैं अभी उसको स्किप करूंगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन। So are you able to see the question number 3 on your mobile screen? यस सर। What is the shortest wavelength present in the Paschen series? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं वो लोग, किसकी बात कर रहे हैं? बोले पाश्चन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो फॉर पाश्चन सीरीज, चलो बताओ मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला। 1 upon lambda equals to r into 1 upon 3 square minus 1 upon n square. और एन स्टार्ट फ्रॉम 4 चलो अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू मेक द लैम्बडा मिनिमम। minimum. तो याद है आपको, लैम्बडा को मिनिमम करने के लिए एन का वैल्यू कौन सा लेना चाहिए? Maximum. मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन? 7. क्या Infinite. हाँ सर। 7? क्या 7? कहाँ से 7? इट शुड बी इनफाइनाइट। एम आई राइट फ्रेंड्स? इट्स ओके। यस सर। 1 अपॉन इनफाइनाइट तो होता है भैया 0, तो बचेगा आपका r/9। तो लैम्बडा मिनिमम अगर आपको फाइंड करना है तो 9/r करना पड़ेगा। यू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ द रिबल कांस्टेंट, गेट द आंसर। ओके, यस सर। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा होता, फ्रीक्वेंसी, तो मैं क्या करता पता है, ये फॉर्मूला जो है ना, तो दोनों साइड में c से मल्टीप्लाई करता। तो c बाई लैम्बडा मिनिमम, तो RC/9, तो ये आपका हो जाता मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लैम्बडा मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, c बाई, अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं, मतलब आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाश्चन सीरीज, तो वही करना है आपको। फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए लैम्बडा को मिनिमाइज करना है। तो पहले तो लैम्बडा मिनिमाइज फाइंड कर दो, और फिर दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू गेट द फ्रीक्वेंसी एज वेल। इज दैट क्लियर? यस सर। पूछ सकते हैं, ऐसा कोई भी सीरीज के लिए पूछ सकते हैं, कर सकते हो ना। चलो आ गया ना r/9, सो 9/r, परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, SQ है। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल। दो एनर्जी लेवल का जो डिस्टेंस है ना, वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। What is the frequency of radiation emitted when the electron make the transition from the upper level to the lower level? So according to the Bohr's third hypothesis, the difference of the energy level is equals to HF. अब आपको डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल तो दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू HF कर दो। H का वैल्यू आपको पता है, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। करने की जरूरत है? देखो तो नहीं सर। मजाक कर दिया है ये तो। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, एक SQ टाइप का ही हम कह सकते हैं। सर 11th में तो કેટલા બધા હાર્ડ ન્યુમેરિકલ્સ હતા। 11th चैप्टर NLM में हाँ नहीं 11th स्टैंडर्ड। हाँ देखो मैंने आपको 2-3 बार बोला होगा कि 11th के रिस्पेक्ट में 12th स्टैंडर्ड जो है ना फिजिक्स का, वो इजी भी, मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ द 12th स्टैंडर्ड आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, ये 12th standard is a quite easier than the 11th standard. Why? Because you are learning a very interesting branch of the physics in the 12th standard: electrostatic, magnetism, electromagnetic induction, optics and modern physics. So देखो 4 ब्रांच है ये फिजिक्स के, जो 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रिसिटी,
मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये जो 12, 13 एंड 14 चैप्टर जो है ना उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो ये चारों ब्रांच है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मोस्टली क्या होता है कि जो बच्चे नीट जेडब्ल्यू में स्कोर करते हैं ना, तो वो लोग का भी ज्यादा जो पोर्शन होता है स्कोरिंग का वो 12th का होता है। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए पता है आपको? आपको 12th है ना उसके हर एक चैप्टर को अच्छे से लर्न करना चाहिए जेडब्ल्यू नीट के लिए भी। एंड 11th के 2-3 चैप्टर को छोड़ दो, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, जैसे लॉज ऑफ द मोशन है। लॉज ऑफ द मोशन का क्या है, बेसिक ठीक है, बट उसका जो पुलिस है, फिर कंस्ट्रेंट पुली के प्रॉब्लम आते हैं। तो वो क्या होते हैं कि अगर वो प्रॉब्लम पूछते हैं, अगर आपको आता है ना, तो भी उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है। तो 11th के कुछ कुछ चैप्टर आप, जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स है, तो उसको आप स्किप, मतलब उसको थोड़ा बहुत 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 डीप में मत जाओ, जितना ठीक है जितना आपको आ सकता है इतना करो। 12th को एकदम बढ़िया करो, पूरे चैप्टर्स को 100% एफर्ट्स के साथ जेडब्ल्यू नीट के लिए प्रिपेयर करो। 11th के कुछ कुछ चैप्टर्स को आप, अगर ऐसा लगता है कि भाई ये नहीं हो पाएगा तो उसको स्किप करो। अगर हो पाता है तो सब कुछ करो, बट अगर अगर मैनेजमेंट करना है आपको कि भाई टाइम कम है, ज्यादा चैप्टर्स करने हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि 11th के एक आध दो चैप्टर आपको, एक आध दो तीन चैप्टर आप जो आपको कंफर्टेबल नहीं है उसको निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिकॉज यू विल नॉट बी गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द नीट एग्जाम। 45 क्वेश्चन वैसे भी 1 आवर में आप, इट इज टफ टास्क, वो करना टफ होता है। जेडब्ल्यू में भी 25 में से पूरे 25 क्वेश्चंस कर लेना वो टफ होता है। तो आपको वहां पे वैसे भी आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा स्किप करना है, वहां पे आपको डिसाइड करना भी पड़ेगा वैसे भी। तो एक आध दो चैप्टर अगर नहीं किया 11th के तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट में, उल्टा अच्छा रहेगा। तो 12th आप बढ़िया कर लो, 11th में भी बढ़िया ही करो, बट एक आध दो चैप्टर उसमें निकाल दो तो चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका रिजल्ट में। ओके, Yes, sir. अभी जो दो चैप्टर बाकी है ना 13 एंड 14, दीज आर क्वाइट इजियर देन द 12th चैप्टर। वो पूरा मतलब फिजिक्स में उल्टा होता है। जैसे फिजिक्स का जो सबसे पहला स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना, वो सबसे मतलब मैकेनिक्स, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद ग्रेजुअली पार्ट 2 में आते हो फिजिक्स के, तो उस थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा जैसे वेव्स ऑसिलेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो वो वेव्स ऑसिलेशंस देन थर्मोडायनेमिक्स, दीज आर द इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। तो ये पार्ट 1 जो है ना 11th का, वो थोड़ा डिफिकल्ट, उससे थोड़ा इजी है पार्ट 2। फिर 12th का पार्ट 1 आया तो वो 11th के पार्ट 2 से भी इजी रहा, और 12th का पार्ट 2 तो बहुत ही इजी है, मतलब पूरा उल्टा उल्टा चल रहा है। तो जैसे फिजिक्स में क्या होता है कि जैसे आप जितना पढ़ते जाओगे ना, उतना आपको इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। केमिस्ट्री में उल्टा होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि पहले आपको बहुत ही इजी लगता है, बट ग्रेजुअली जैसे 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 एग्जाम आएगा तो आपको ऐसा लगेगा ये केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा लगेगा। तो फिजिक्स करो आप, मजा आएगा, आराम से करो। अभी दो चैप्टर और इंटरेस्टिंग है, और मजा आने वाला है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13 - 13.6। तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो रहता है ना, वो होता है -k²/2r, इफ यू रिमेम्बर। वो हमको दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब k²/2r का जो वैल्यू है ना, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पूछा क्या है, एक पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो वैसे भी आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस k²/2r ही होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरा पूछा है आपको पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -k²/r, k Q1 Q2/r। तो इसका मतलब कि ये जो है ना, ये k²/2r का वैल्यू 13.6 है, तो k²/r का वैल्यू क्या रहेगा, 13.6 इंटू 2। इसका आंसर आएगा -2 इंटू 13.6। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा -27.2 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल, Ye- खत्म हो गया क्वेश्चन। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. मतलब सीधी सी बात ऐसी है कि टोटल एनर्जी का अगर नेगेटिव निकाल देते हो, वो लॉजिक ऑलरेडी हमने डेवलप कर दिया है। क्या लॉजिक था, पोटेंशियल एनर्जी का अगर हाफ करते हो तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगा,
एंड टोटल एनर्जी में से माइनस को निकाल देते हो तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो टोटल एनर्जी में से माइनस को निकाल दिया तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। एंड रूल ये था, रूल क्या था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो हाफ होता है ना वो टोटल एनर्जी है, तो वाइस वर्सा पोटेंशियल का हाफ टोटल है तो टोटल का डबल पोटेंशियल होगा, तो टोटल का डबल कर दो तो वो पोटेंशियल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। हो गया, ये 5th वन हो गया। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है देखो क्वेश्चन 6। हाइड्रोजन एटम initially in the ground state. Now it absorbs the photon and which due to which it excited to the 4th level. So determine the wavelength and frequency of the photon. तो मतलब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था। अब ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था और उसने क्या किया कि फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया, तो वो कहाँ पे चला गया, तो बोले 4th स्टेट में चला गया। तो मतलब ये जो भी फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ होगा उसका उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? The energy must be equivalent to the difference of the E1 and E4. Then and then the electron can move from the ground state to the 4th state. Am I right, friends? यस सर। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन था ना उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, तो उसके द्वारा उसको जो भी एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन 4th स्टेट में चला गया। इसका मतलब ऐसा हुआ कि एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ गिवन एनर्जी लेवल। तो फ्रेंड्स एनर्जी ऑफ द फोटोन मतलब HF मस्ट बी इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल E4 माइनस E1। तो ये बात समझ में आया फ्रेंड्स आपको? ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। बोल दो। Now as you know, energy of a different level can be given by minus 13.6 upon n square electron volt। तो मुझे क्या करना है पता है आपको? E1 फाइंड करना है, तो E1 का होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड मुझे फाइंड ये भी करना है कि E4 क्या होगा। तो 13.6 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 13.6 को 16 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलता है देखो तो। 13.6 को 16 से डिवाइड कर दो तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। तो अब ये मुझे है ना लैम्बडा फाइंड करना है, तो HC बाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस 0.85 माइनस माइनस प्लस 13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर दिया चलो। तो 13.6 माइनस 0.85 तो ये हो जाएगा आपका 12.75, ये आपका 12.75 हो जाएगा। बट अब क्या करना है आपको? HC अपॉन 12.75 1.6 10 टू माइनस 19। अब ये H एंड C का वैल्यू आप प्लेस कर दो। एक काम करो, ये H इंटू सी जो है ना उसका वैल्यू आप याद रख दो, बिकॉज उसका है ना वैल्यू बार बार यूज होने वाला है। तो H इंटू सी इंटू 3 इंटू 10⁻²। चलो बताओ मुझे क्या आ रहा है? 6.625 इंटू 3 क्या आ रहा है? 19.85 कुछ आ रहा है। करो ना एक बार कंफर्म करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। 19.86 875 875 ओके। एंड इंटू बचेगा आपका 10⁻²⁰. अब एक काम करो, इसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो ना। 1.6 10⁻⁻19, तो 19.875 को 1.6 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है?
बोलो 19.875 को 1.6 से डिवाइड करो। 1 पॉइंट, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। 12.421875। 12.421 42 ओके इंटू 10⁻⁻19 बचेगा ना, तो 9 बचेगा। तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1 2 4 19, तो 19 है ना, तो यहाँ पे बचेगा आपका -19 + 19, तो 7 बचेगा, 7। फिर से करो तो 19 को 1.6 से डिवाइड करना है आपको। यप। और तो ये आपका 12.42 एंड 10⁻² क्या बचेगा, ये 10⁻19 है ना, तो 7 बचेगा, -7। तो 12.42 आ रहा है। 12.42, अच्छा गुड। तो कैन आई से इट इज अ 1242 10⁻⁻9 एंड इसका जो यूनिट होगा ना वो क्या होगा पता है आपको? इसका यूनिट जो है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एच का होता है जूल इनटू सेकंड, सी का होता है मीटर पर सेकंड। तो ये जूल को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू मीटर। तो अभी आपको है ना ये याद रखना है, एच सी इज इक्वल्स टू 1242 नैनोमीटर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आप याद रख दो, तो ये आपको बहुत ही यूज होने वाला है। ये आपका एच सी का वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻⁹ मीटर का मतलब नैनोमीटर। ओके સર એક્ઝામમાં ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની જગ્યાએ જૂલમાં રાખે તો એટલે બધી જ વસ્તુ। देखो मैंने इसलिए ऐसा किया कि अभी जो है ना मैं है ना जो डिनोमिनेटर है ना उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखने वाला हूँ। मैं ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको जूल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। हाँ तो सर, बट मतलब हाँ कर जरूरी सकते है हो, हाँ, कम। उस जरूरत कुछ भी नहीं है, बट ये याद रखने से आपको जेडबली नीट के एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगा। तो आपका अभी नहीं, आपका एचसी का वैल्यू भी मेरा कैसा है? मतलब हाँ वो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सारे इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिक। नैनो हाँ बोलो सर। 10⁻²। क्या बोल रहे हो? सर वो न्यूमेरिकल्स में वो पहले एनर्जी का आंसर न्यूमेरिकली ला देते हैं जूल में, फिर और करके वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाते, तो हम एग्जाम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखना है उसका भी। देखो जनरली जब इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्टेड एनर्जी जो होती है ना उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना प्रॉपर है। तो जनरली आपको एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्टेड एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखना है। ओके ओके सर। तो अभी ये एच सी का वैल्यू है ना 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखो एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपका ये जो डिफरेंस इन द एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाला है। तो मैंने क्या किया, एच सी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट कैंसिल हो जाएगा और दूसरा आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली नैनोमीटर में आ जाएगा लैम्बडा का। तो ये 1242/12.75 जो भी करो दैट इज 10⁻⁹ का नैनोमीटर। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा ये। इज दैट क्लियर? यस सर। एक बार आपको लैम्बडा मिल गया, एक बार लैम्बडा मिल गया तो आप पता है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, सी बाई लैम्बडा करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दो उसके बाद लैम्बडा फाइंड करो, जो भी आपकी मर्जी। ओके यस सर। जो भी करना है कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इज इट ओके? इट्स ओके। पता चला ये फ्रेंड्स? यस यस सर। पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, E1 फाइंड किया, E4 फाइंड किया, डिफरेंस निकाला, उसको एच सी बाई लैम्बडा के साथ कंपेयर। देखो ये रहा, ये वैल्यू हमने निकाला, देखो ये मैंने प्रूव करके दिया। तो अभी ये एच सी का जो वैल्यू है ना 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, ये याद रख दो, बहुत कम आएगा। ओके ओके सर।
वैसे बोर्ड के एग्जाम के अंदर तो जरूर नहीं पड़ेगा, बट जेडबल नीट में ये काम आएगा। चलो, सीबीएसई वालों को भी काम आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, देखो क्या लिखा है। ओके, देखो क्या है। Using the Bohr's model, calculate the speed of electron in the hydrogen atom in n is equals to 1, 2 and 3 level. मुझे n is equals to 1, 2 and 3 level का speed find करना है. Calculate the orbital period for each cases. Okay. मुझे speed भी find करना है. मुझे अलग अलग स्टेट के पीरियड भी फाइंड करना है। ओके, तो मैं थोड़ा मेथड ये चेंज करता हूँ। यहाँ पे जो मेथड दिया है ना, उसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा इजी बना रहा हूँ। एज वी नो, रेडियस ऑफ orbit of electron according to Bohr's model, what we get? N square h square epsilon naught upon pi m square z. Z becomes 1 because hydrogen. And that was, if you remember, 0.53 n square angstrom, right? Is that clear? तो आपका n इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो रहेगा ना आपका रेडियस, वो 0.53 एंगस्ट्रॉम रहेगा। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए जो आपका रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा भैया? 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। एंड n इज इक्वल्स टू 3 के लिए जो आपका रेडियस रहेगा वो 0.53 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। इज दैट क्लियर? चलो यहां तक समझ में आया भैया? यहां तक समझ में आया? यस सर। नाउ according to Bohr's second postulate, L is equals to NH upon 2 pi. That means MVR is equals to NH upon 2 pi. तो अगर V को सब जगह इक्वेशन बनाते हैं तो कैन आई से NH upon 2 pi into M into R. Is that clear? चलो यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। ओके, ये जो क्वेश्चन अभी मैं चला रहा हूं, अभी जो करा रहा हूं आपको, दैट इज ऑफिशियल फॉर्मा का क्वेश्चन। चलो नाउ पुटिंग द n इज इक्वल्स टू 1। देखो हमको क्या करना है कि अलग अलग 1 2 3 स्टेट के लिए आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो v1 आपका हो जाएगा h अपॉन 2 पाई m इंटू आर 1 हो जाएगा। यस और नो? तो h का वैल्यू 6.5 10⁻⁻34 अपॉन 2 14 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 एंड r1 जो है ना वो आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 10⁻10। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ ना मुझे क्या आ रहा है इसका आंसर। 6.625 अपॉन 2 अपॉन 3.14 अपॉन 9.1 अपॉन 0.53। तो क्या आ रहा है आंसर देखो तो। बोलो क्या आ रहा है?
0.2187 और वो सब 10 की पावर कैलकुलेट नहीं की। हाँ तो 7 आ गया ना। चलो n इज इक्वल टू 2 करते हैं, तो आपका V2 इज इक्वल टू 2h अपॉन, देखो यहाँ पे NH अपॉन M2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2h अपॉन 2πm/r2 नाउ। तो ये आपका हो जाएगा 2 गेट कैंसल्ड, तो 6.625 10⁻⁻34। सर इंटू 2 कर ही दो ना क्या बोल डायरेक्ट। 0.218 इंटू 2 कर दिए। नहीं, R2 है ना, R2 डिनोमिनेटर में, इंटू 4 कर दे दो तो सही है ना। अपॉन 4 करना पड़ेगा, अपॉन 4 करना पड़ेगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा। 1.092। पता चला अपॉन 2 क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज रेडियस जो है ना वो 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम है ना। तो देखो क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4, तो बाकी तो सब कुछ वही है, बाकी तो सब कुछ वही का वही है, बट इंटू अपॉन में इंटू 2 बचा है। तो अभी जो आपका आंसर आया 0.2187, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 0.1092। तो क्या आएगा, 0.1092 92। 109, मतलब बता भी दो। 22। ओके, तो ये V2 मिला, एंड सिमिलरली यू कैन गेट द V3 एज वेल। वो आपका 3h अपॉन 2πm इंटू R3 हो जाएगा। तो मैं बताऊँ आपको, R3 में 9 इंटू 0.53 और ऊपर 3 है, तो आपका जो भी V1 मिला था ना, डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। आपको जो भी V1 मिला था उसको डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। तो 0.2187 डिवाइड बाई 3 करो तो क्या आ रहा है आपका, बोलो क्या आ रहा है? 0.7277। तो ये क्या गया आपका 0., 0.7277। चलो तो आपको V1 V2 एंड V3 मिल गया। नाउ V इक्वल्स टू R ओमेगा, R ओमेगा के बदले 2π/t। तो आपको पीरियोडिक टाइम फाइंड करना है, तो आपका हो जाएगा 2πr/v। तो अगर T1 फाइंड करना है तो 2πr1/v1 एंड सो ऑन। T2 फाइंड करना है तो 2πr2/v2, एंड T3 फाइंड करने के लिए 2πr3/v3। करोगे फ्रेंड्स? R1 R2 R3 आपके पास है, V1 V2 V3 आपके पास है, तो T1 T2 T3 मिल जाएगा आपको। आया बात में? यस सर। So it's a good question. Is that okay? देखो क्या सेम टू सेम आंसर आ रहा है? पहले का आंसर, अगर पहले का सेम है, अगर ये आंसर सेम है तो सारे आंसर सेम हो गए, उसका ऐसा कह सकते हैं हम। तो 2185 10⁻⁷। तो क्या ये वेलोसिटी का 21, देखो थोड़ा यहाँ पे मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, सो आई हैड गिवन अ क्वाइट सिंपलर मेथड। देखो आ गया ना, 21 10⁻⁶ हो गया, मेरा 0.21 आ रहा था 10⁻⁷ में, तो 2.18 10⁻⁶ बराबर है। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा मेथड करके दिया इसको। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको अलग से एक बार लिखना है। देखो इस चैप्टर के अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और बहुत कम न्यूमेरिकल्स ऐसे है कि जो 4 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये न्यूमेरिकल के प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स में आने का है, तो आप आराम से घर पे मैं जो स्क्रीनशॉट भेजता हूँ उसके द्वारा एक बार पूरा क्वेश्चन आराम से एक बार लिख दो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा बोर्ड के एग्जाम में। ओके ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8th क्वेश्चन में ये तो सिंपल से, तो एसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आ गया, हमने कर दिया है।
ऑलरेडी कर दिया है। द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, 5.3 10⁻⁻11 मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द रेडियाई फॉर द n equals to 2 and n equals to 3 state? Okay, so as we know, r proportional to n square for the given atom, तो r2 upon r1 is equals to 2 square upon 1 square, that is a 4। तो अगर आपको सेकंड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है ना, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्बिट के साथ। एंड सिमिलरली अगर आपको r3/r1 करोगे तो 3 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर मतलब 9 मिलेगा। तो r3 इज इक्वल्स टू 9r1, तो 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। जस्ट गेट द आंसर। वो तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी कर दिया था। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये 8th क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 is one more question which can be asked as a 4 mark, and that is the last question of this chapter as well। ये चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे देखो 3 न्यूमेरिकल ऐसे हैं, 3 ही न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि जो 4 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। नंबर 1 इलस्ट्रेशन, नंबर 6 लास्ट इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। ये 3 न्यूमेरिकल कर दो, 90% प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि इसमें से कोई न्यूमेरिकल आपका 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। 90% प्रोबेबिलिटी है इसका बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ओके, तो 3 न्यूमेरिकल ही आपको करना है। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है इसमें से। ये तो ऐसा तो किसी भी चैप्टर में नहीं है। तो अब समझने की ट्राई करते हैं ये क्या है, 4th क्वेश्चन है क्या। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखो क्या लिखा है, 12.75 बीम यूज्ड, यहां पे 5 नहीं है 75 है। 12 प्रिंटिंग मिस्टेक है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू bombard gaseous hydrogen at the room temperature. What series of wavelengths will be emitted? तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अभी ग्राउंड स्टेट पे है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ग्राउंड स्टेट पे है, और उसको मैंने कितना एनर्जी प्रोवाइड किया, मैंने उसको कितना एनर्जी प्रोवाइड किया भैया, 12.75 एनर्जी प्रोवाइड किया। तो ये ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहां पे जा सकते हैं, ग्राउंड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जा सकते हैं। तो मुझे ये पता है कि भैया E2 माइनस E1 जो होता है ना फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डिफरेंस जो है ना वो है आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 माइनस E1 जो है ना वो आपका 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड E4 माइनस E1 जो है ना वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर ग्राउंड स्टेट पे कोई इलेक्ट्रॉन है एंड मैंने उसको 12.75 एनर्जी दिया तो वो कहां पे जाने वाला है, तो वो कहां पे जाएगा बोलो। 4th ऑर्बिट एंड फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस 12.75 है। तो जब 4 में से 1 में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन 4 में से ट्रांजिशन करके 1 में आएगा तो 12.75 इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, एमिशन करेगा। बट अगर ग्राउंड स्टेट पे है एंड मैंने उसको इतना दिया तो वो कहां पे जाएगा, एक्साइट होके 4th ऑर्बिट में। चलो वो गया तो गया, बट आपको पता है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना, वो एक्साइटेड स्टेट जो होती है ना वो मेटास्टेबल स्टेट उसको बोलते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट अब करेगा। वो वापस से ग्राउंड स्टेट पे आने का ट्राई करेगा। तो अब कौन कौन से टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल है,
जितने अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल है उतने अलग अलग टाइप के वेवलेंथ wavelength। तो कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल, अब देखो मेरी बात सुनो, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि डायरेक्टली फोर्थ में से वापस से फर्स्ट में आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि फोर्थ में से पहले थ्री में आएगा, अच्छा चलो फोर्थ वाले जितने भी है वो समझ लेते हैं, फोर्थ में से टू में जाएगा और फोर्थ में से थ्री में भी जा सकता है। तो फोर्थ में से इतने ट्रांजिशन पॉसिबल है। मान लो कि वो फोर्थ में से थ्री में आ रहा है, तो फिर वो थ्री में से वन में जाएगा, थ्री में से टू में जाएगा, एंड मान लो कि वो फोर में से टू में जा रहा है तो टू में से वन में भी आएगा वो। तो इतने अलग अलग सिक्स टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिक्स डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल हियर, एंड करस्पॉन्डेंट टू ईच ट्रांजिशन you get a different wavelength. तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस उसका एक फॉर्मूला है n/2 इंटू n माइनस वन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल n में से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो उसके लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n/2 n माइनस वन है, जहां पे यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 4 है। तो 4/2 इंटू 4 माइनस वन क्या होता है, 3 होता है। तो कितना होगा, आंसर क्या आएगा बोलो। 6। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है n/2 इंटू n माइनस वन। n इज द नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ नंबर का स्टेट है, तो वहां पे जब वहां से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसके लिए नंबर ऑफ ट्रांजिशन विच इज पॉसिबल इज n/2 इंटू n माइनस वन, मतलब 6। तो आप देख सकते हो ये 6 टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल है, एंड करस्पॉन्डेंट टू ईच ट्रांजिशन यू गेट अ डिफरेंट वेवलेंथ। तो यहाँ पे केस वन, तो ऐसे कितने केसेस हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा आपको E4 माइनस E1 इज इक्वल टू hc/λ1। तो अगर आपको λ1 फाइंड करना है, ये आपका वेवलेंथ नंबर वन, आप ऐसे 6 वेवलेंथ आपको मिलेगा hc/E4 माइनस E1। hc का वैल्यू आपको पता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई E4 माइनस E1 का जो वैल्यू है ना वो 12.75 है। तो ये 12.75 निकलो नीचे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेट कैंसल्ड, तो आपका आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। केस टू, अब मैं क्या करूं, 4 में से 3 में ट्रांजिशन करूं, 4 में से 2 में करो, चलो 1 2 3 ऐसा हो जाएगा ना। तो अब ये आपका हो जाएगा E4 माइनस E2 इज इक्वल टू hc/λ2। तो λ2 इज इक्वल टू hc/E4 माइनस E2। अब E4 एंड E2 के बीच में डिफरेंस कितना है, फोर्थ एंड, तो 3.4 माइनस 0.85, तो 3.4 माइनस 0.85 करो, 3.4 माइनस 0.85 तो क्या आ रहा है आपका 2.55। 2.55। इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल्ड, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका λ2 मिल जाएगा नैनोमीटर में। तो ऐसे आपको कितने केसेस करना है, 6। 6 बार आपको कैलकुलेशन करना है, पता चला आपको। यस सर। तो ये ऑफिशियल 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन। यस सर। तो ऐसे कितनी बार कैलकुलेशन करना है उसका शॉर्टकट क्या है, n/2 इंटू n माइनस वन। तो ये कितनी बार कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया भैया। मैं जस्ट ट्रांजिशन के नाम लिख देता हूं फिर आप कैलकुलेशन कर देना। 4 टू n इज इक्वल टू 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 गया, चलो ये 4 का काम खत्म। केस 4, अब 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 टू 2 एंड 3 टू 1, केस 5 एंड केस 6, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर। तो इतने ट्रांजिशंस पॉसिबल है, आया बात समझ में। यस Yes, सर। sir.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो चैप्टर है उसके सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, जो भी आपके एग्जाम्स के अंदर है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर आप एक बार लर्न कर दो, अच्छे से प्रिपेयर कर दो। मेरा जो एग्ज़ाम है वो ये संडे को एग्ज़ाम है आपका, चैप्टर नंबर 12 का फुल का। कल हम कुछ एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा, आपको सेल्फ लर्निंग के एमसीक्यू सॉल्व करके लाना है कंपलसरीली। ये चैप्टर में से 3 एमसीक्यू पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछने वाला है। फ्रेंड्स प्लीज डू प्रिपेयर दिस चैप्टर, ओके। और फीस अगर बाकी है तो फीस पे कर दीजिएगा प्लीज फ्रेंड्स। आज का सेशन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ।